کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغان حکومت سے خطے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی درخواست کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کابل میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت میں اضافہ ضروری ہے، افغان شہریوں کو باعزت طریقے سے بھیجا جائے گا۔ عبوری وزیر خارجہ سے مہاجرین سے متعلق 4 اصولی فیصلے ہوئے۔ ڈیلیگیشنز ہیں اور جو ایگزیبیشنز ہیں، تاکہ اب یہ ہم جب تجارت کھول رہے ہیں اور اتنی یعنی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، دونوں حکومتیں مل کے کر رہی ہیں، تو ان کی آپس میں ایگزیبیشن، آپس میں ٹریڈ ڈیلیگیشن کا تبادلہ وہ اس وقت انتہائی ضروری ہے، تو تاکہ یہ ایکٹیویٹی بڑھے، دونوں ملکوں کی خوشحالی ہو، دونوں ملکوں میں تجارت کا فروغ ہو اور دونوں ملک جو ہے اس کے عوام، اس کے تاجر برادری سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح ہمارا جو طورخم میں جو آئی ٹی ٹی ایس سسٹم ہے، اس کو بھی ہمیں آپریشنائز کرنے کے لیے تجویز کیا گیا کہ جتنی جلدی کریں، اور ہم کوشش کریں گے اس کو بھی 30۔ اور تھرکول پاور پلانٹس کو زیر زمین پانی کی فراہمی میں سنگین رکاوٹوں کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اسی حوالے سے شکیل نائٹ سے۔ جی شکیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھ، جو تھرکول کے وہ اپنا پاور پلانٹ ہے، اس پاور پلانٹ کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، اور اس پر انہوں نے جو وہاں پر پانی فراہم کرنے والی جو کمپنی ہے، انہوں نے سندھ کے محکمہ آبپاشی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں ان سے کہا ہے کہ جو زیر زمین پانی ہے اس کو وہاں پر اس کی اتنی رکاوٹیں ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اس کی پانی کی فراہمی مشکل ہو رہی ہے۔ پاور پلانٹس کو زیر زمین پانی کی فراہمی کی جاتی ہے، اور اس میں رکاوٹوں کے انکشاف کے بعد کمپنی نے محکمہ آبپاشی کو خط لکھ دیا ہے۔ تھرکول پاور پلانٹ کو پانی فراہم کرنے والی نجی کمپنی انٹر ٹیک واٹر پرائیویٹ لمیٹڈ نے سیکرٹری آبپاشی کو خط مل کر کہ خراب مٹیریل سے زیر زمین پانی کا جو اضافہ ہے اس میں شدید رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، جس سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور جس سے یہ پانی جو ہے وہ اس کو فراہم کرنے میں، جو پاور پلانٹ کو فراہم کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے 4 نکات سیکرٹری آبپاشی کو پیش کر دیے، جس میں کہا ہے کہ موجودہ رکاوٹوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ لی جائے، متاثرہ علاقوں کا غیر جانبدار انجینئرز کے ذریعے دورہ کرایا جائے، اور جو ہاکڑوں مائنر سے ملنے جو پانی کا رسا اس کا معائنہ کرے، پروجیکٹ ڈیزائن کے بارے میں جامع بریفنگ لی جائے، جس میں سوال جواب کا بھی وقفہ شامل کیا جائے، موجودہ رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے ریلیف کے لیے جو رائے دی جائے تاکہ اس کے اقدامات کیے جا سکیں، تاکہ آئندہ جو زیر زمین پانی کی فراہمی میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اور پاور پلانٹس کو پانی مسلسل فراہم کیا جا سکے۔ جی، تفصیلات کے لیے شکریہ شکیل۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گاؤں ہارون شیخ کا دورہ کیا اور سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے گھروں کا معائنہ بھی کیا۔ پی پی چیئرمین نے سیلاب متاثرہ خاندان کے نابینا بچوں 9 سالہ گل حسن اور 13 سالہ سجاد سے ملاقات کی، اور نابینا بچوں کی رہنمائی کے لیے ٹیکٹائل ٹائر سے بننے والے ٹریک کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گاؤں جھنڈو کھوسو کے سیلاب متاثرین کو گھر کا مالک بنا دیا ہے۔ سیلاب متاثرین میں گھروں کے مالکانہ حقوق کے اسناد تقسیم کیے جانے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ متاثرین کو گھروں کے مالکانہ حقوق دینے سے پوری ایک نسل کو فائدہ پہنچے گا۔ 135 گھر تعمیر ہو چکے ہیں، باقی بھی جلد تیار کر لیے جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گاؤں ہمت آباد میں سیلاب متاثرین کو سندھ حکومت کی جانب سے دیے جانے والے گھروں کا دورہ کیا ہے۔ پی بی چیئرمین نے متاثرین کی جانب سے قائم کیے جانے والے اسکول اور ڈسپینسری کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر موجود مکین خاتون نے بتایا کہ اس نے اپنے سسر کو ملنے والے گھر کو ڈسپینسری میں تبدیل کر دیا، جبکہ اپنے گھر میں صبح کے اوقات میں بچوں کو تعلیم دیتی ہوں۔ بلاول بھٹو نے منتخب نمائندوں کو ہدایت دی کہ گاؤں ہمت آباد میں بنیادی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ اسرائیل کی فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے خلاف ڈیفنس کلفٹن تاجر اتحاد کے صدر میاں طارق کی جانب سے
3 तलवार क्लिफ्टन पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहरे में कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर, सिंध ताजिर के वाइस चेयरमैन शेख हबीब और कराची ताजिर अलायंस के चेयरमैन काशिफ साबरानी समेत गर्ल शॉपिंग मॉल के सैकड़ों ताजिरों ने शिरकत की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे। मुर्तजा वहाब, डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और एडमिनिस्ट्रेटर शहाब अली की जानिब से फीता काट कर कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब 25वीं सालाना मवेशी दोस्त मंडी का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि मवेशी मंडी के इंतजामिया बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज सनाउल्ला हकड़ो से। जी सना, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कराची में मवेशी दोस्त मंडी का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह कर दिया गया है। मवेशी दोस्त मंडी का इफ्तिताह मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इफ्तिताह किया। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। मंडी का बाकायदा जो है आज इफ्तिताह हुआ है और उसके बाद जितनी भी तैयारियां और बाकी जो फैसिलिटीज मैनेजमेंट करेंगी उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। इस बार ये मवेशी मंडी न सिर्फ व्यापारियों के लिए खुशकुन साबित होगी, यहाँ शहरियों को भी अच्छे से अच्छा जानवर दस्तयाब होगा। साइकिल के जो पैसे हैं पार्किंग के और गाड़ियों के, उसको हाफ कर दिया गया है। दूसरा इसमें ये किया गया है कि जो व्यापारी अपना टेंट लेके आना चाहता है वो आए और पहले पाइये की बुनियाद पर अपनी जगह खुद चूज करे और उधर अपना टेंट लगाए। टेंट के लिए ये है कि वो अपनी टेंट उसका मेयारी होना चाहिए। अगर उसका टेंट मेयारी नहीं होगा तो वो इंतजामिया से मेयारी टेंट ले सकता है डिस्काउंट रेट पे। सनाउल्लाह हकड़ो तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबदीन मेमन ने DHO हैदराबाद के हमरा गवर्नमेंट अस्पताल फरीदाबाद में 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जिब्रान, बताइएगा। अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। आज फरीदाबाद हॉस्पिटल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला के मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। हमारे साथ DC हैदराबाद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि पोलियो मुहिम का बाकायदा कर दिया गया है, फ्यूचर के हवाले से क्या आपकी हिकमत अमली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 3 माह के एक अरसे के बाद पोलियो कैंपेन की जा रही है मुल्क भर में। इस दफ़ा न सिर्फ सिंध एपिडेमिक एंड इम्यूनाइजेशन कंट्रोल एक्ट जो हमारा है उसमें गिवन गाइडलाइंस और रूल्स जो हैं उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बल्कि जो मुसलसल 3 और 3 से ज़्यादा कैंपेन से इंकारी वालदैन हैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में, हम ये SOP भी एम्प्लॉय करेंगे कि उनके NICs को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और साइमल्टेनियसली इनकी SIMs को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि इफ़ प्यूनिटिव एक्शन इज़ रिक्वायर्ड तो फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि विदाउट डिस्टर्बिंग द फैमिलीज मच हम प्यूनिटिव एक्शंस की तरफ इस दफ़ा जाएँ। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबदीन मेमन की बात सुनी कि उनका कहना है कि वालिदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मरकजी मुस्लिम लीग का 28 मई को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। मरकजी मुस्लिम लीग ने हर UC में अवामी खिदमत मरकज भी कायम और लाहौर की 422 यूनियन काउंसिल से बर इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी का कहना था कि तमाम मुक़्तदर जमातों ने मुल्क को लूटा, अब खिदमत की सियासत का वक्त है। मुल्क की खजाने के साथ मजीद खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पानी की तरह पैसा बहाने वाली जमातों के खिलाफ डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बाइज्जत और अच्छे खानदानों के अफराद को सियासत में आगे लाएंगे। लाहौर में पहले मरहले में 25,000 नौजवानों को IT ट्रेनिंग दी जाएगी। करप्शन, नफरत और इंतशार की सियासत का खात्मा, खिदमत की सियासत को फरोग देंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के। आपने नॉर्दर्न बाईपास के करीब कायम मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि मवेशी मंडी से शहर की रौनकें बढ़ती हैं और इंतजामिया खरीदारों और व्यापारियों को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मंसूर ज़िया की इस रिपोर्ट में। नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी की गहमा गहमी, व्यापारियों की आमद और जानवरों की गूंज। कराची में ईद उल अजहा की तैयारियों का आगाज। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने मंडी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर से व्यापारी कराची का रुख करते हैं ताकि अच्छी तिजारत हो सके। ये हकीकत है कि पाकिस्तान भर के व्यापारी जो है वो कराची का रुख करते हैं, इस बड़ी मंडी का रुख करते हैं ताकि वो अपनी साल भर की मेहनत को यहाँ
यहाँ ला सके और उसका एक माकूल मुआवजा हासिल कर सके, इस उम्मीद के साथ कि ये वक्त सबके लिए अच्छा होगा। मेयर कराची का कहना था कि तब्दीली का लफ्ज अब बदनाम हो चुका है, ये बेहतरी का साल है, कराची वाले सखी हैं, उम्मीद है इस साल बड़े पैमाने पर कुर्बानी होगी। उनका मजीद कहना था कि जब कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कैमरामैन मोहम्मद बेहजाद के साथ मंसूर जिया और सनाउल्लाह हकड़ो, 5 न्यूज़ कराची। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में मुनक़िदा ग्रीन ग्रैंड कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत की है, जहां तुलबा ने पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया। तफसीलात अरसलान चांद नवाब की इस रिपोर्ट में। जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में रंगारंग कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। तालबात की जानिब से सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत और रिवायती खानों के स्टॉल्स लगाए गए। मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी करते हुए तालबात ने इलाकाई मलबूसात ज़ेबतन किए और अपने कल्चर से मुतालिक मालूमात भी पेश की। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने फेस्टिवल में शिरकत की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने तालबात के जज्बे को सराहा और कहा कि ऐसी सरगर्मियां नौजवानों को एक दूसरे की सकाफत से जोड़ती हैं। पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है, तो मैं वजी भाई आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जो अब हमारे ज़िम्मे जो चीज़ें लगाई हैं अल्लाह ताला करवाने वाला है, वो अल्लाह ताला करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं दुआगो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपके यहाँ से निकली हुई बच्चियाँ इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अपने घर का नाम, अपने खानदान का नाम, इस शहर कराची का नाम और इस इंस्टीट्यूशन का नाम जो इंशाअल्लाह ताला बहुत रोशन करेंगे। जिन्ना यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा ये फेस्टिवल न सिर्फ रंगो खुशबू का इम्तिजाज था, बल्कि कौमी यकजहती और सकाफती हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल भी पेश करेगा। जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में कल्चर फेस्टिवल के जरिए से तुलबा व तालबात ने तमाम सूबों की नुमाइंदगी करके खूबसूरत रंगों को बिखेर दिया है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ असलान चांद नवाब, 5 न्यूज़ कराची। महंगाई के इस दौर में जहां आवाम के लिए आटे की कीमत कम करके कुछ रिलीफ देने की कोशिश की गई, वहां ये तवक्को की जा रही थी कि रोटी भी सस्ती हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। कमिश्नर कराची की जानिब से रोटी की नई कीमतें मुकर्रर की गई, लेकिन तंदूर मालिकान अब भी पुराने निर्खों पर रोटी फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से देखेंगे दुआ गफार की ये रिपोर्ट। जब आटा सस्ता हो जाए तो रोटी भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। हुकूमत ने आटे की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ देने की कोशिश तो की, मगर रोटी की कीमतों में कोई वाज़ेह कमी ना आ सकी। कमिश्नर कराची ने सरकारी सतह पर तंदूर की रोटी की नई कीमतें 15 रुपए मुकर्रर की, लेकिन बाजारों में अब भी यही रोटी 20 से 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। अवाम का कहना है कि अगर हुकूमत कीमतें कम करे तो उसका असर जमीनी सतह पर भी आना चाहिए, वरना रिलीफ सिर्फ ऐलानात तक महदूद रह जाता है। जो आटा सस्ता हुआ है तो रोटी भी सस्ती होनी चाहिए ताकि आवाम तक इसके जो है फवाइद जाएं। यहाँ मसला असल में ये है, ऊपर माफिया बैठी हुई है, नीचे तक आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिलता। होटल वालों को भी चाहिए कि रोटी सस्ती करे। रोटी वही 20-22 रुपए की मिल रही है, उससे कम नहीं, और जहाँ जाओ तो वो बोलते हैं यही रेट है। इधर तंदूर मालकान का मौकिफ है कि महंगी गैस, कम प्रेशर और दीगर अखराजात कीमत कम करने में रुकावट बने हुए हैं। पहली चीज देश आ रही नहीं होती है, सिलेंडर पे काम चल रहा होता है, तो ये सिलेंडर का तो अपना एक्सपेंस होता है वो तो हर महीने हर डेली का है। इससे अलावा तो देश ना आने के बावजूद भी बिल भी भरने पड़ते हैं, इस वजह से रोटी सस्ती नहीं है। सिर्फ आटे पे पैसा कम हुआ और लकड़ी सस्ता नहीं हुआ, मजदूर की जाड़ी देना होगा, किराया देना होगा, बहुत सारे खर्चे है ना, पूरा नहीं हो सकता है ना, इसलिए रेट भी कम नहीं हो सकता है। रोटी जो अवाम की बुनियादी जरूरत है वो भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुकर्ररा नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि आटे का रिलीफ हकीकी मायनों में अवाम तक पहुंच सके। आटा सस्ता हो गया मगर सस्ती ना हुई तो तंदूर की रोटी नहीं हुई। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में इतवार कल से हीट वेव शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है।
اس کے ساتھ دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق سینئر ماہر موسمیات انجم نذیر زیغم نے وضاحت کی کہ سندھ کے بالائی اور وسطی علاقوں سے دور ہونے والا ہائی پریشر ایریا کے باعث اتوار سے سمندری ہوائیں رکنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے جنوبی علاقوں کی طرف موسمی نظام کی نقل و حرکت آج سے صوبے کے باقی حصوں میں جاری ہیٹ ویو کو کم کرنے میں مدد دے گی، جبکہ محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں ہیٹ ویو کی وجہ سے عام لوگوں، خاص طور پر بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ سورج کی روشنی میں براہ راست نمائش سے گریز کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ۔